Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So in today's class, we'll try to learn about areas. Area के बारे में देखेंगे. And since in previous lecture we all had seen basics of area. हम लोगों ने area के basics देख लिए थे कि area होता क्या है actual में. Now in today's class, I'll tell you some formulas related to area. Area के बारे में कुछ formula बताएंगे. और and you also have to note down these formulas in your copy so that you can solve these types of questions very easily. Now I'm first taking a triangle. So if we have a triangle and having base is a B. So in triangle, if base is B and height is 8. Now height, what is the meaning of height? Height की meaning ये है कि suppose जिसको हम base suppose कर रहे हैं and the vertex opposite to this base, इस base के opposite में जो vertex होगा वहाँ से if we are trying to draw a perpendicular on the base, अगर हम एक perpendicular draw करें इस base पे तो इसकी length है h, इसकी length है, that length is h. And this length is also known as altitude of triangle, जिसको हम altitude भी बोलते हैं. जो रेड कलर में हमने लाइन ड्रॉ किया है और इसको हाइट भी बोलते हैं. So if we have to find area of triangle, so it will be half of base into height, half of base into height. So here base is b and h is height, so the area will be half of b into h. So this is a area for triangle. So जब भी हमें एरिया फाइंड करना होगा, एरिया मीन्स इसके पूरे अंदर का पोर्शन, ठीक है, जो वाइट पोर्शन हमें ट्रायंगल में दिख रहा है अंदर का, ये उसकी पूरी क्वांटिटी चाहिए होगी. देन इन दैट केस विल यूज दिस फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट आई एम टेकिंग रेक्टेंगल. अभी हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है. सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज W. अभी हमने यहाँ पे W से डिनोट किया है. W मीन्स ये कोई हमारा नंबर होगा, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, नंबर्स होगा. तो एट दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस लेंथ इज W एंड विड्थ और हाइट वी कैन से दैट हियर दिस इज H. दैट मीन्स जो हमारे ये रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ होती हैं तो इनको हमने लिया है एंड दैट इज वन इज W एंड अनदर साइड इज H. So we can say that area of rectangle is W into H. W means width and H means height, या फिर we can say that length. So that means जो दोनों sides होंगी इसमें rectangle में उन्हीं को हम लोग multiply कर देंगे and we get the value of area. हमें area की value मिल जाएगी when we find area of rectangle. Now अब यहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल भी लें, एग्जाम्पल से थोड़ा बताने की कोशिश करें ताकि आप लोग को इजी भी रहे समझने कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे. सपोज इन ट्रायंगल द बेस इज, सपोज ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमारे पास बेस मीन्स P, वैल्यू ऑफ P इज हियर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज, आई एम टेकिंग हियर हाइट H इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया. सो हाउ कैन वी फाइंड एरिया? एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे? विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. द फॉर्मूला ऑफ एरिया फॉर ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. सो हाफ इंटू बेस इज 10 and height is 5 here. So we can solve this and find the value of area. 2 5s are 10. Now 5 into 5 25 and now here base is in centimeter and height is also in centimeter. So centimeter is multiplied by centimeter, so we can say that this is 25 centimeter square. ठीक है. This is the area of this triangle. इस triangle का ये area है. In a similar way we can take an example for a rectangle. Suppose the width here is 10 centimeter and this height is also 5. This is 5 centimeter. So if we want to find area of this rectangle, so what we do, we'll apply here formula. So area is length into width, या फिर we can say that here जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है width into height.
तो जो हमारी दोनों साइड्स होंगी उन दोनों साइड्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई हियर, that is this is 10 centimeter and 5 centimeter, so 10 into 5 we get here 50 and centimeter square, ठीक है। so in this way you will see that the unit of area is square of the unit, square of the unit, unit means कि जो भी लेंथ है और विड्थ की यूनिट होगी उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे और उस टर्म में अपने एरिया को लिखेंगे, ठीक है। नाउ third is square. In case of square all the sides are equal, so if one side is given a, अगर एक साइड की वैल्यू a given है तो it means that all the sides are having a, the length of all the sides are a, so the area of square is a square, a means square of side, जो हमारी साइड है उस साइड को स्क्वायर कर देंगे and will get its value, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। now suppose if I am taking an example here, the value of a is here 5 centimeter, value of a is 5 centimeter, that means this square having sides of 5 centimeter, so for area what we do, area find करने का हम लोग क्या करेंगे, we have area is a square, a square means square of side, side का स्क्वायर करना है, so the side is here 5 centimeter, I am going to write here 5 square, ठीक है। so 5 square means 25 and here the unit of side is centimeter, so we'll write 25 centimeter square, ठीक है। so this is the area of square. now in a similar way we can find area of parallelogram, इस तरीके से हम लोग पैरेललोग्राम के भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। so if I am talking about parallelogram, so currently I am taking a base here b, base means कि the length of a side, कि एक साइड की लेंथ हमारे पास है इस टाइम b, ठीक है। so in we know that in parallelogram opposite sides are parallel and equal, ठीक है। so I am going to write here these two sides are parallel and equal and these two sides are parallel and equal, this is our parallelogram. now the height of this parallelogram is h, height means जो हमने बेस से सपोज किया है उस बेस के अपोजिट में जो ये पैरेलल लाइन है तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, दैट इज नोन एज हाइट। हाइट मीन्स कि सामने वाली लाइन से एक हम इस पे परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे, सो द मेजरमेंट ऑफ दिस साइड, इस साइड का जो भी मेजरमेंट होगा दैट लेंथ इज h, वो लेंथ है h। so if we want to find area of this parallelogram, so the area of this parallelogram is base into height, base into height। so base means कि जो हमारी ये वन साइड गिवन है, अब इस गिवन साइड के से हम ये परपेंडिकुलर ले लें तो दैट परपेंडिकुलर इज हाइट, ठीक है। इन अ सिमिलर वे ये ऐसे भी हो सकता है कि सपोज आपके पास ये वाली साइड गिवन हो, ये वाली साइड, ठीक है। जो आपके पास ये साइड गिवन होगी तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको फिर इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना होगा, ठीक है। इस बेस से करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना होगा, दैट मीन्स कि एक ये आपको साइड लेनी है और एक ये साइड लेनी है। अब इन दोनों साइड के बीच में कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको हाइट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो बेस है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज बेस इज हियर 10 सेंटीमीटर, चलिए बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज हियर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स कि दिस इज लेंथ ऑफ साइड, सो बेस हियर इज 10 एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 5, ठीक है। सो आर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10 इंटू 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया मीन्स जब भी हम एरिया बोलेंगे तो आप अपने माइंड में ये समझिएगा कि एरिया मीन्स मीनिंग ये है कि इसके इंटीरियर पार्ट की, इंटीरियर पार्ट की वैल्यू, के इंटीरियर पार्ट ये वाला जो पूरे पार्ट है,
ठीक है, जो व्हाइट कलर में है। तो ये सब आप समझिएगा कि दैट इज एरिया। तो आप ये फाइंड कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये अंदर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपने फाइंड किया है, ठीक। सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ एरिया। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर फिगर दैट इज ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम हमने लिया है फिगर। सो इन ट्रेपेजियम व्हाट वी हैव, हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, वी हैव अ बेस एंड बेस मीन्स कि अभी यहाँ पे बेस हमारा ये है कि जो टू पैरेलल लाइंस होती हैं इन ट्रेपेजियम वी हैव टू अपोजिट पैरेलल लाइंस। सो वी हैव लेंथ ऑफ दोज वैल्यूज, हमारे पास उनकी लेंथ है एंड ऑल्सो वी हैव हाइट, दैट मीन्स distance between these two parallel lines. So in trapezium, suppose this line and this line, these two lines are parallel, ठीक है। trapezium में हमारे पास one pair of lines are parallel होती हैं। So at this time we have length of these sides. So the length of first side is A and length of second side is B and these two sides are parallel. So इनकी लेंथ गिवन होगी आपके पास, जो साइड्स पैरेलल होंगी उनकी लेंथ गिवन है। अगर गिवन नहीं है देन यू हैव टू फाइंड दीज लेंथ, किसी न किसी तरीके से आपके लेंथ फाइंड करनी होगी जो भी ये पैरेलल साइड्स हैं। फिर उसके बाद में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ A plus B into H means height. A plus B means ये कौन सी sides हैं, these are the length of sides which are parallel, ठीक है, जो कि पैरेलल हैं। ये हमारी A plus B sides जो भी पैरेलल साइड्स होंगी उनको ऐड कर देंगे। देन आफ्टर एडिंग व्हाट वी डू, will multiply height। So now if I am going to take here some example, अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखें और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए कैसे हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। So at this time I am going to write here a question that is, suppose the measurement of two parallel sides are 10 centimeter and this is 15 centimeter, ठीक है। and distance between these two parallel sides are, this is 2 centimeter, ठीक है। डिस्टेंस मीन्स कि हाइट, इनके बीच में जो हाइट है, हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 2 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है। सो व्हाट वी डू, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ A plus B into H, ठीक है ना। तो हम इसी फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे और अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। हाफ ऑफ A plus B मीन्स कि the length of these parallel sides. So here we have 10 centimeter plus 15 centimeter. So I am going to write here 10 plus 15. Now into height. Height means कि distance between these two lines, that is 2 centimeter. So I am going to write here 2. So let's solve this. इसको solve करते हैं। तो 2 into 2 cancel out. Now 10 plus 15, what we get here? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया हमारा जब भी आएगा तो हम लोग ये यूनिट पे जरूर ध्यान देंगे कि जो भी यूनिट होगी साइड्स की उसी के स्क्वायर कर देना है लास्ट में आंसर में, ठीक है। दैट मीन्स हियर द वैल्यू ऑफ एरिया फॉर दिस ट्रेपेजियम इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वन इज लेफ्ट, दैट इज रोम्बस। रोम्बस हमारा बच गया था। तो इन केस ऑफ रोम्बस all the sides are equal and also those are parallel to each other. रोम्बस के केस में साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं and equal to each other and diagonals are not equal, they are perpendicular bisector. diagonals perpendicular bisector होते हैं। So suppose if the length of diagonals are, one diagonal is D1 and another diagonal is D2, ठीक है। जो हमारे पास दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स की लेंथ है, एक डायगोनल की लेंथ है D1 और दूसरे डायगोनल की लेंथ है D2, D फॉर डायगोनल, ठीक है। 1 मीन्स के फर्स्ट डायगोनल एंड D2 मीन्स की सेकंड डायगोनल। दोनों डायगोनल की लेंथ हमारे पास है, एक D1 है एक D2 है। सो टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस,
will multiply these two diagonals and will take its half value. So area of rhombus is half of d1 into d2. When we have to find area of rhombus, so what we do, जब भी हमें एरिया फाइंड करना होगा rhombus का, तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर उसको हाफ कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद. सो सपोज इफ द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर, that means d1 is 5 centimeter and d2 is 10 centimeter. ठीक है. So d1 means कि ये वाली पूरी लेंथ, ये लेंथ, this length. ठीक है. This length is 5 centimeter and this length, this diagonal, the length of this diagonal is 10 centimeter. So we have to find the value of area. So what we do, we'll apply here formula directly. This is half of d1 into d2. d1 means 5 and d2 is 10. So we can solve this. 2 5 are 10. So 5 into 5, 25 centimeters square. In this way we can find our areas with the help of these formulas. Now in next topic we'll try to learn about parallelograms, and I'll try to take area of parallelograms where two parallelograms are drawn, and we'll see that base is common and also they are drawn between same parallels. So now in theorem, I am taking a theorem here, that is parallelograms on the same base. अगर हमारे पास two parallelograms हैं और same base है and between the same parallels, और वो parallelograms दोनों same parallels के बीच में बने हुए हैं. ठीक है. क्या होना चाहिए, base same होना चाहिए and उनकी height भी same होनी चाहिए. Same parallels में होने के बीच में मीनिंग क्या है, उनकी हाइट सेम होनी चाहिए. ठीक है. सो एरिया ऑफ दीज टू पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल होते हैं. ठीक है. सो अब ये इक्वल कैसे होते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं. देन आफ्टर दैट विल यूज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली. इस प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में. ठीक. अब स्टेटमेंट्स पढ़ करके समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम फिर से समझते हैं. क्या है कि सपोज वी हैव अ पैरेललोग्राम हियर ए बी सी डी. हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड वी हैव अनदर पैरेललोग्राम बी सी एफ ई. बी सी एफ ई ये एक पैरेललोग्राम है. सो हियर वी सी दैट बेस इज कॉमन. बेस हियर इज बी सी. दिस इज बेस. दिस इज बेस. हियर बेस इज कॉमन. ठीक है. इन बोथ दी पैरेललोग्राम्स. ओके. सो लेट्स सॉल्व. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब देखिए जो हमारे दोनों पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ ई. दिस टू ट्रायंगल्स, दिस टू पैरेललोग्राम्स आर मेड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. टू पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं. इट मींस दैट, इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि हाइट इज सेम. हाइट यहाँ पे सेम होगी. सपोज इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. सो दिस हाइट इज h. सपोज दिस हाइट इज h. ठीक है. ये हाइट हमारी h हो जाएगी. एंड हियर बेस इज आई एम टेकिंग b. बेस इज आई एम टेकिंग स्मॉल b. ठीक है. सो अब इसको थोड़ा प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं. तो अभी हम लोगों ने जो पढ़े हुए हैं उसकी हेल्प लेकर के प्रूफ कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ ई. बी सी एफ ई. ठीक है. सो चलिए इसको प्रूफ करते हैं. इसको प्रूफ करते हैं और फिर आसानी समझते हैं कि यह क्या चीज है. सो फॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए हम क्या लें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज बेस इनटू हाइट. अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था
ठीक है, क्या पढ़ा था हम क्या करेंगे, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज आर इक्वेशन 1, दिस आर इक्वेशन 1। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ BCFE, अगर हमें BCFE का एरिया चाहिए तो वो कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर पैरेललोग्राम BCFE। अगर हम इसकी बात करें, सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम BCFE, इसका एरिया फाइंड करना। सो क्या करेंगे, इसमें भी देख लीजिए ये बेस तो कॉमन ही है, बेस की ये मेजरमेंट तो सेम है। नाउ हाइट इज ऑल्सो सेम, हाइट भी सेम है, ठीक है ना, हाइट भी सेम है। सो वी कैन राइट हेयर बेस इंटू हाइट, वी कैन राइट हेयर बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, सो व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कह सकते हैं, वो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल। देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, बेस इंटू हाइट यहाँ भी है, बेस इंटू हाइट यहाँ भी। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, this is equal to the area of parallelogram BCFE, equal to the area of parallelogram BCFE, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखा कि when height is same and base is common, so if we draw different types of parallelogram, area is equal, area equal होते हैं।